This is a very quick and short revision video about the chapter The Making of a Scientist given in your book Footprints Without Feet, prescribed for class 10 English CBSE syllabus. तो इस पूरी वीडियो में हम जल्दी से समरी करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी साथ साथ देखते हुए डिटेल्स भी लेंगे और एग्ज़ाम प्रेपरेशन के लिए आपको अच्छा खासा कंटेंट मिलने वाला है. सो लेट्स प्रोसीड. So let's summarize the chapter first of all. This is a story, not a story, this is actually a biography. These are all correct, right, true facts. So it is all about Richard H. Ebright. This is the name of a scientist. He grew up in Reading. Reading एक जगह है लंदन में और पेंसिल्वेनिया वहाँ का वो सिटी है. तो when he was in kindergarten, मतलब KG classes में, he collected butterflies. His mother used to take him on trips, bought him a telescope, microscope, cameras, mounting materials and other things that all were required for learning. और उसका एक इंटरेस्ट आया बटरफ्लाई कलेक्शन में. जब वो सेकेंड क्लास में आया, he had collected all 25 species of butterflies found around his hometown, and his mother had given him a children's book called The Travels of Monarch 10. Monarch एक butterflies की कैटेगरी है, स्पीशीज़ है. तो इस बुक से उसको वर्ल्ड ऑफ साइंस उसके लिए ओपन हुई. ही जॉइन डॉक्टर उकुआट. ना उकुआट डॉक्टर एक रिसर्चर थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा, and he was undertaking a project through this book, the book named The Travels of Monarch 10. Now he participated in that project and for several years he kept raising butterflies under his observations की डिटेल सारी चैप्टर में है. and all that got his interest in research work. अब उसको रिसर्च करने का इंटरेस्ट आ गया. करते करते in grade 7 he lost द काउंटी साइंस फेयर. बड़े सारे साइंस फेयर्स वो जीतता था, बट क्लास 7 में ही लॉस्ट दिस कॉम्पिटिशन एंड ही डिसाइडेड टू वर्क ऑन रियल एक्सपेरिमेंट्स. नाउ फॉर दिस रियल एक्सपेरिमेंट, वेयर डिड ही गेट द आइडिया? ही गॉट द आइडिया फ्रॉम द सेम डॉक्टर उकुआट. नाउ फॉर हिज 8th class project, he tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. अब viceroy butterflies देखने में monarch जैसी लगती हैं, वो उनको copy क्यों कैसे करती है, इसके बारे में he made the research, and this project stood first in zoology division and third in overall in the county science fair. ये आपको ये details learn करनी पड़ेंगी. Then he won the third place for zoology. Indirectly, it also led to his new theory on the life of cells. And this project won him first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair. In his third year in high school, he began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. यहाँ पे इस स्लाइड पे अभी पहले 2 पॉइंट्स में ये 2-3 बातें निकल के आती हैं. आपको एज इट इज इसको लर्न करने, ये रटने वाला लेसन है. आप इसके फैक्ट्स मेमोराइज करेंगे, लर्न करेंगे तो ये आपका पक्का होगा, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ fact based chapter. So Richard A. Wheeler, this is the name of a teacher. This teacher is that teacher who admired and he had all praises for him. उनकी बहुत तारीफ करते थे साइंटिस्ट की, एब्राइट की. and apart from being a science student, Ebright is not just a science researcher or a science student, he excels in many other things. Not just studies, he has good intellect, curiosity and the willpower to make a scientist, because what it takes in making a scientist, यही चैप्टर का नाम है. और यही जो लास्ट लाइन मैंने लिखी है, दिस इज़ टेकन, इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न. दिस इज़ अ थीम ऑफ द चैप्टर कि सिर्फ एक साइंस वाला दिमाग नहीं होना चाहिए, यू हैव टू हैव इंटेलेक्ट अपार्ट फ्रॉम क्यूरियोसिटी एंड विल पावर. सो दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड दिस साइंटिस्ट ब्रिलियंट. सो दिस इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर. इस चैप्टर में मैंने बहुत कुछ अनमार्क किया हुआ है. आप उसको ये देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स बताई जाती हैं. रिचर्ड एब्राइट की पूरी ये स्टोरी है. तो आपको मेनली देखना है थर्ड पैराग्राफ से बिगिन करके कि यहाँ पर उसने कलेक्शन ऑफ थिंग्स स्टार्ट करी थी किंडरगार्टन से, जब वो बहुत छोटा था. और उसके बाद वो क्या क्या कलेक्ट करता था, मैंने नीचे लास्ट के 3 लाइन्स आप देख सकते हो, वो मैंने जो हाईलाइट करी है वो ये चीज़ें हैं जो वो कलेक्ट करता था. अब इन जो पेजेस के ऊपर जो हो रहा है मैं आपको वो एक्सप्लेन करने लगी हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि रिचर्ड एब्राइट का मदर का क्या रोल था. मदर आपको टॉप लेफ्ट में आप देख सकते हो, मदर ब्रॉट हिम सो मेनी थिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स हेल्प्ड हिम इन लर्निंग वेरियस अदर थिंग्स. यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप इसको रीड करो. अगर मैं रीड करूँगी मैं तो बोल दूँगी रीड करके, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि बेटर है कि आप इसको रीड करो. टॉप के 4 लाइन्स जो मैंने पिंक में हाईलाइट की हैं, उसके बाद आपको जो लर्न करना है वो है यहाँ से आगे जाके कि रिचर्ड एब्राइट
साइंटिस्ट था और उसने अपनी साइंसेस की लर्निंग उसकी डेवलप कैसी हुई। तो फर्स्ट ग्रेड में वो अपनी मदर के साथ नई नई चीज़ें सीखता था। सेकंड ग्रेड में उसने कलेक्शन स्टार्ट की 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स देख रहे हो, बॉक्स के बिल्कुल ऊपर की लाइन है, ऑल 25 स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज उसने कलेक्ट की थी बाय सेकंड ग्रेड। बॉक्स के नीचे मैंने पिंक हाईलाइट किया है 4 लाइन्स को, वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 इस नाम की एक बुक थी। द मदर हैड बॉट दिस बुक फॉर साइंटिस्ट एब्राइट। मोनार्क 10 इज़ अ स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई दैट माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। और ये जो स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाइज थी, इनके बारे में एक एक्टिविटी थी, जिस एक्टिविटी की डिटेल नेक्स्ट पेज के ऊपर ग्रीन में हाईलाइट है, राइट हैंड साइड टॉप। ये जो एक्टिविटी थी डॉक्टर उकवॉट नाम के एक साइंटिस्ट ने डिज़ाइन की थी। व्हाट वाज देयर इन द एक्टिविटी ये आप रीड करो, ग्रीन में हाईलाइटेड है। इसको मैं अब यहाँ पे रीड करके नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप उसको मिस कर दोगे तो आप उसको मिस कर दोगे। इसको रीड करो, ग्रीन हाईलाइट में एक्टिविटी की डिटेल है। उसके बाद पिंक हाईलाइट आता है, राइट साइड पेज के बॉक्स है, बॉक्स के जस्ट ऊपर मैंने पिंक में हाईलाइट की हैं लाइंस। इसमें हमें पता लगता है कि उसने बटरफ्लाइज को रेज करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्टिविटी में उसको बटरफ्लाइज को टैग करना पड़ता था। बटरफ्लाइज को टैग करने के लिए पहले बटरफ्लाइज को कैच करना पड़ेगा, विच वॉज इम्पॉसिबल, वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो ही रेज्ड बटरफ्लाइज एट होम। ही यूज टू कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक द एग्स, उसका पूरा प्रोसेस, लाइफ साइकिल फ्रॉम एग, प्यूपा, कैटरपिलर, ये सारा के सारा लाइफ साइकिल उसको ऑब्जर्व करता था, उनको बड़ा करता था बटरफ्लाइज को, फिर उनको टैग करके भेज देता था बाहर उड़ने के लिए। सो ही डिड सच अ टीडियस थिंग एंड ही वॉज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड एट दैट टाइम। बट ये इससे उसकी रिसर्च और क्यूरियोसिटी की हैबिट्स बढ़ने लग गई। धीरे धीरे उसको टैगिंग में इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि उसके लगाए हुए टैग्स को रिकैप्चर नहीं करता था, कोई भी उन टैग्स को पकड़ता नहीं था, और वो जो बटरफ्लाई पे टैग वो लगाता था, उन टैग्स को आगे कोई डॉक्टर को वॉर तक नहीं पहुँचाता था। उसे लगा ये वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स है। अब इस पेज के ऊपर क्लास वाइज एब्राइट के सारे एक्टिविटीज़, उसके प्रोजेक्ट्स, कॉम्पिटिशन्स और विक्ट्रीज, अचीवमेंट्स लिखी हुई हैं। ये हम थोड़ा समझेंगे इस बात को। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ग्रेड, एक बारी उसका एक काउंटी साइंस फेयर कंपटीशन होता है साइंस का, 7th ग्रेड में वो लूज़ हो गया। तो वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट साइड टॉप फर्स्ट लाइन 7th ग्रेड जहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे उसका वो कंपटीशन लूज़ हो गया। इस कंपटीशन में उसको लूज़ होकर उसने क्या सीखा? उसने सीखा कि वो लोग कंपटीशन जीतते हैं दोज हु मेक रियल projects, those who make real experiments, those who do real experiments. एक तो ये समझना है। Secondly, they have to make a neat display also. Two things he learned, and he started working, but he did not have the ideas to create such real experiments. So he takes again Dr. Ukowart support। ये वही डॉक्टर Ukowart थे जिन्होंने बटरफ्लाइज की एक्टिविटी आपने पिछले पेज पे लर्न करी थी ना, वो उन्होंने करवाई थी। Ukowart के आइडियाज़ के ऊपर इसने स्टार्ट करा काम करना। अब क्लास 7 में वो फेल हो गया था, प्रोजेक्ट उसमें हार गया था, काउंटी साइंस फेयर में हार गया था। क्लास 8 की बात आती है, ऑरेंज में हाईलाइट किया क्लास 8 की एक्टिविटी क्या थी। यहाँ पे आपको दो चीज़ें लर्न करनी है, एक्टिविटी का पर्पस और उसका रिवॉर्ड। पर्पस क्या था, एक्टिविटी की थीम क्या थी? टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज दैट किल्स नियर बाय ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी 4 years। ये थी क्लास 8 की एक्टिविटी का थीम। उसका रोल क्या है, उसकी विक्ट्री क्या हुई? ही शोड एंड ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट एंड ही वन। तो 9th क्लास की एक्टिविटी ब्लू में हाईलाइट किए हुए, उस एक्टिविटी का क्या थीम था? उस प्रोजेक्ट का थीम था वाइसरॉय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। अब ये थियोरी की डिटेल यहाँ पे और दी, आप इसको रीड करो। और इस एक्टिविटी का, इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट क्या आया? बॉटम ऑफ द पेज देखो, ब्लू हाईलाइट, दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड इन जूलॉजी डिवीजन एंड 3rd ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। मेन दो बातें आपने ये लर्न कर ली। आगे चलते हैं। 2nd ग्रेड हाई स्कूल, पिंक में हाईलाइट किया हुआ है राइट हैंड साइड ऑफ द पेज पे। इस सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल में उसने थीम क्या उठाया प्रोजेक्ट का? इसके था एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में उसने रिसर्च बाद में जाके की, क्योंकि वो यहाँ पे उसकी रिसर्च शुरू हो गई थी। इस प्रोजेक्ट का थीम क्या था? 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा? इस एक्टिविटी का, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा क्या हुआ? इस प्रोजेक्ट का रिजल्ट ये था, मैं आपको बताने लगी हूँ। देखो, ही वन 3rd प्लेस फॉर जूलॉजी, ही 1st प्लेस इन काउंटी फेयर, एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। ये सारा पिंक में हाईलाइटेड है। हाईलाइट पिंक जो यहाँ पर है उसकी लास्ट की 3 लाइन्स में रीड कर रही हूँ। एंड ही गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। लेकिन इस एक्टिविटी का, इस प्रोजेक्ट का सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होता। इफ़ेक्ट और अचीवमेंट आगे उसको ये बहुत आगे तक लेके जाती है, यही वाला प्रोजेक्ट लेके जाता है। इसी प्रोजेक्ट को वो आगे हाई स्कूल जूनियर में भी कंटिन्यू करता है, इसी को वो सीनियर ईयर में भी कंटिन्यू करता है, और इसी को वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी कंटिन्यू करता है। 3 जगह पे वो कंटिन्यू करता है आगे, और आगे आगे जाके वो
हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इक्विपमेंट के साथ, मैंने ऑरेंज में हाईलाइट किया, मैं वहाँ पे रीड कर रही हूँ. यूजिंग लेबॉर्टरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर. इससे उसका फ़ायदा क्या हुआ, 1.5 ईयर और लगा उसको, और उसने क्या पता लगाया, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन. और एक और बात, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ दिस डीएनए. ये जो मैंने अभी लाइन रीड किया है, ये इसी राइट हैंड साइड पेज 36 की लास्ट थर्ड लाइन है. हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए. दिस वाज द अल्टीमेट रिसर्च दैट एवराइट डिड. I hope you are liking my classes. Thanks for being with me at eClasses with Shalini ma'am. I request you all to please like, subscribe and press the bell icon. If you do that, your gesture is going to really motivate me so that I create more such videos and bring more useful content for you. Thank you so much. अब हम आते हैं लास्ट पेज पे. ये सारी अचीवमेंट्स एवराइट की हो गई हैं. अब हम एवराइट का इन जनरल उसका क्या प्रोफाइल था स्कूल में वो बताया. रिचर्ड एवराइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स. ही स्टूड सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510. फिर आगे हमें पता लगता है हाई स्कूल रिसर्च ऑन द पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स मेड हिम इनटू अ थ्योरी अबाउट सेल लाइफ. आगे मैंने ब्लू में अंडरलाइन किया, ही इज़ अ चैम्पियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, गुड कैनोविस्ट एंड एवरीथिंग. और आगे एक टीचर का नाम आता है रिचर्ड ए वीरर. ये जो टीचर हैं ये उनके टीचर और एडवाइज़र बन गए, और वो उसकी तारीफ़ करते थे कि ही ऑलवेज यूज टू गिव एन एक्स्ट्रा एफर्ट. तो मैंने यहाँ पे अभी ये ब्लू लाइन में रीड करके आपको बताया कि जो एवराइट की पर्सनालिटी थी उसमें स्पेशल क्वालिटीज़ क्या थी. हमें ये देखना है, इस चैप्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेम ऑफ द चैप्टर ही है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. तो व्हाट गोज़ इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट को क्या सिर्फ साइंस आनी चाहिए, इज़ दैट द ओनली थिंग रिक्वायर्ड. नो, एवराइट वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट बिकॉज ही हैज़ सो मेनी मोर क्वालिटीज़. यहाँ पे पूरा का पूरा आप रिचर्ड ई वेरर जो इसके टीचर थे उनका ओपिनियन आप डालेंगे इस आंसर में. ही वॉज, वो कहते हैं, मैंने पिंक में डार्क पिंक में हाईलाइट किया हुआ है, मिस्टर वेरर वॉज अ परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज. सो पहले तो एक साइंटिस्ट को एक अच्छा टीचर मिलेगा तो वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनेगा. अब रिचर्ड एज अ साइंटिस्ट क्यों था वो अच्छा, क्यों एज अ ही वॉज सक्सेसफुल, बिकॉज ही ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. ये उसके टीचर ने बोला, एक्स्ट्रा एफर्ट वो हमेशा देता था, जबकि वो बटरफ्लाइज की रिसर्च में बिजी होता था. बट वो एक मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स की डिबेट के लिए भी ही यूज टू पुट इन एक्स्ट्रा effort. He used to find out details, he used to find out more and more content, research based ideas for doing well in the debate sessions. Richard was competitive. Next point आप इसमें ये लर्न करेंगे. ये पॉइंट क्या है, अब उसके टीचर ही बोलते हैं ही वॉज कम्पेटिटिव. कम्पेटिटिव मतलब जो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट होती है जैसे इंसान में, अब वो गलत भी होती है अगर हम किसी दूसरे का बुरा करके कुछ जीतना चाहेंगे तो, बट ही वॉज कम्पेटिटिव इन द राइट वे. Not interested in winning or for the sake of winning or just to get a prize, but he wanted to win because he wanted to prove that he has done the best job. So he used to work hard. He was very hard working also. So end में यहाँ पे एक लाइन मैंने ऑरेंज में हाईलाइट की है, फर्स्ट रेट माइंड. सिर्फ दिमाग से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता, आपको क्यूरियोसिटी चाहिए, दोनों के मिक्सचर में विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स चाहिए. मतलब यू नीड द विलिंगनेस टू विन एंड यू नीड टू डू द बेस्ट जॉब. ओनली देन यू कैन बी अ गुड एंड ग्रेट साइंटिस्ट. ये सारा है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट इस चैप्टर का. डिटेल में चैप्टर में अच्छा परफॉर्म करने के लिए चैप्टर रीडिंग कंपलसरी है. सिर्फ इस रिवीजन से आप एक्सेल 100% नहीं आएंगे, लेकिन हाँ आपके जल्दी से गो थ्रू हो गया, आपने चैप्टर रीड किया हुआ है. इन पॉइंट्स, ये पॉइंट्स वो हैं जो आप कभी मिस ना करना, इनमें से इतना लर्न ज़रूर करके जाना. आई होप यू लाइक द वीडियो. So that was all for this chapter, the making of a scientist. I hope you enjoyed this chapter. This chapter is quite fact based. You will have to learn them, you'll have to cram them very honestly. Make your notes, but if you do that it won't take much time. तो मैंने जो भी पॉइंट्स मार्क करे हैं उनको मार्क करो, उनको सुनो, रिवाइज करो. इस वीडियो को 2 बार सुन लेना. इवन इफ़ यू लिसन इट एट अ फास्टर स्पीड, प्लेबैक स्पीड इंक्रीज़ करके आपको जल्दी रिवीजन हो जाएगी. बाकी मैंने एक शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो भी इसकी डिज़ाइन करके डाली है प्लेलिस्ट में, आप उसको देखकर जल्दी रिवाइज कर सकते हो. Keep excelling in English and be with me at eClasses by Shalini ma'am.